Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Hargat Pathshala. Students, we are doing organic chemistry and in that some basic principles and techniques of class 11th and its lecture 6th. And today's subtopics are nomenclature of different classes of compounds. And in this, we'll discuss nomenclature of alkanes, nomenclature of alkenes, nomenclature of alkynes, halogen derivatives of alkanes and their nomenclature, and then we will discuss the nomenclature of alcohols. So students, let's start with today's subtopic, that is nomenclature of different classes of compounds. So बच्चों, nomenclature of alkanes, जैसा कि आप जानते हैं जनरल फॉर्मूला जो है आपका alkanes का, that is CnH2n+2. And बच्चों, there is always carbon-carbon single bond. Means carbon-carbon atom के बीच में हमेशा ही आपका single bond रहेगा, then it means it is your alkane. And the suffix used here is "-ane". Let's take an example. Let's say this is the first member of alkane. Now see here the N is your number of carbon atoms. Then here N is your 1. So it means H कितने होंगे बेटा इसके साथ? 2 into 1 plus 2, that is of 4. So it's the first member of your this alkane which is having only one carbon atom. Then it's your meth. Word root for one carbon atom is your meth, and then suffix here is "-ane", then its IUPAC name is methane. Then बच्चों, two carbon atoms are there, eth plus "-ane", then its IUPAC name is ethane. Similarly here, three carbon atoms, prop plus "-ane", propane. And here, four carbon atoms, then it's your but plus "-ane", then it's a butane. Then next, five carbon atoms are there, then it's a pent plus "-ane", that is a pentane beta. So since this way we can name the alkanes. Now beta, types of alkanes, there are the different types of alkanes like straight chain alkanes. Straight chain alkane में क्या रहेगा बेटा? There will be no branching, means जो आपके कार्बन atoms and they will be joined in a linear chain, in a straight chain rather. There is no side chain of the carbon atoms. So such alkanes are called straight chain alkanes. Now here four carbon atoms are attached with each other in a straight chain beta, and word root for this is but plus "-ane", then it's a butane. Similarly here five carbon atoms are there, it's a pentane beta. Now branched chain alkanes. बच्चों, branched chain alkanes में क्या रहेगा? There will be a side chain of the carbon atoms. Clear? Now this is a branched chain alkane beta, because there is a side chain carbon atoms are also there. Branch chain alkanes को जब हम naming करते हैं, then we select the longest chain, then we give the numbering so that this side substituent जो है that should get the lowest number. Clear? So इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, इस साइड से भी नंबरिंग कर रहे हैं बेटा 1 2 3. तो you know this side substituent is getting the locant 2 बेटा, means second position पे है ये बेटा. It's your 2-methyl propane. और बच्चों, ये जो साइड सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हम करते हैं, whatever number of carbon atoms are there. Clear? So it's so 1, then it's so meth. उसके साथ हम YL यूज करेंगे बेटा suffix, that is a methyl. So it's a 2-methyl propane. Now similarly here, this is a 1 2 3 4, it's a 2-methyl butane beta. Now this is also your branched chain alkanes, because आपका क्या side chain carbon atoms are also there. Is that clear? So now this is also said to be your beta isobutane, because second position पे आपका क्या है?
methyl group is there. So here this is isopentane. Now बच्चों, this is a 2-methyl propane. This is a 2-methyl butane. This is 2,2-dimethyl propane. Now बच्चों, types of carbon atoms in alkanes. बच्चों, जो आपके कार्बन एटम्स हैं अल्केन्स में, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. और वो क्या हैं? प्राइमरी कार्बन एटम्स, सेकेंडरी कार्बन एटम्स, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स. और बच्चों, अब ये प्राइमरी कार्बन एटम्स क्या रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस ओ इथेन हियर. लेट्स से दिस कार्बन इज देयर, दिस इज अटैच्ड फर्दर टू 1 कार्बन, देन दिस इज प्राइमरी. Again here, this carbon is attached to 1 carbon only directly beta. So this is again your primary carbon. This is a propane. This carbon here is primary carbon because it is further attached to 1 carbon atom directly beta. And this carbon here is secondary carbon because it is directly attached to the 2 other carbon atoms. One is this one and other is this one. And this carbon here is primary carbon. Now beta, this is a 2-methyl butane. Now this carbon here is primary carbon. This carbon is primary again. This carbon is also primary carbon because these carbon atoms, they are attached to single carbon atoms directly beta. Now this carbon atom here is directly attached to this carbon as well as this carbon beta. So 2 carbon के साथ ही directly attached है. That's why this carbon is secondary. And now this carbon here is directly attached to 3 carbon. One is this one, other one is this one, and third one is this one beta. So this carbon here is tertiary carbon. Now beta, let's take another example. So this is a primary carbon here. This is also primary carbon beta, primary carbon, primary carbon. These all 4 are primary carbon क्योंकि these carbon atoms are directly linked to only 1 carbon atom here. Clear? Whereas this central carbon here is quaternary beta. Why? Because it is directly attached to the 4 carbon atoms. Now बच्चों, और ये जो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी हमने कार्बन एटम्स डिस्कस किए बेटा. सो इन 4 में से 3 के साथ क्या हो सकते हैं बेटा? हाइड्रोजन एटम्स आर देयर. सो अकॉर्डिंगली दीज हाइड्रोजन एटम्स आर ऑल्सो सेट टू बी बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स. नाउ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स कौन से हैं बेटा? ऐसे हाइड्रोजन एटम्स which are attached to the primary carbon, they are your primary hydrogen atoms. और ऐसे हाइड्रोजन एटम्स which are attached to the secondary carbon, they are your secondary hydrogen atoms. और ऐसे हाइड्रोजन एटम्स which are attached to the tertiary carbon, they are your tertiary hydrogen atoms. क्वाटरनरी में पॉसिबल नहीं है बेटा. क्यों? क्योंकि क्वाटरनरी में क्या है? क्वाटरनरी कार्बन जो है उसके साथ 4 कार्बन एटम्स जो है, दे आर डायरेक्टली लिंक. सो देयर आर नो हाइड्रोजन एटम्स. नाउ बेटा, एल्काइल ग्रुप. अब ये एल्काइल ग्रुप क्या है? यू नो बेटा, एल्काइल ग्रुप इज हैविंग 1 हाइड्रोजन लेस एज दैट ऑफ द alkane beta. Now here 1 hydrogen is less from the corresponding alkane. क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला बेटा CnH2n+2 और एल्काइल ग्रुप का क्या है? CnH2n+1 मींस 1 हाइड्रोजन एटम इज लेस इन केस ऑफ योर एल्काइल ग्रुप. एंड बेटा एल्काइल इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय योर दिस R बेटा. क्लियर? नाउ एल्केन जैसे अभी कहा बेटा हमने कि CnH2n+2 है. क्लियर? सो अब एल्काइल ग्रुप की हम नेमिंग कैसे करेंगे? एल्केन में से आप एन हटा दें और YL सफिक्स यूज करें बेटा. सो दैट विल बी योर एल्काइल. ये पहले भी मैंने बात की. नाउ बेटा दिस इज योर एल्काइल ग्रुप, दिस इज योर R. क्लियर? सो बेटा alkanes can be expressed as RH because R here is alkyl group और एक H इसके साथ लगा दें बेटा. So that will be your alkane.
Now बच्चों, let's say this is a one carbon atom is there, methyl, ethyl, propyl, then your butyl, then your pentyl beta. So accordingly here now methyl beta, this is alkyl group, ethyl जैसे पहले ही कहा मैंने बेटा, propyl, then butyl, then it's so pentyl. So all these alkyl groups here have one hydrogen atom less from the corresponding alkane. जैसे मीथेन से एक कम हाइड्रोजन एटम है यहां बेटा तो मिथाइल हो गया, इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम कम है तो इथाइल हो गया. सो इट्स प्रोपेन से एक हाइड्रोजन एटम कम है तो प्रोपाइल. सो दीज आर योर ऑल एल्काइल ग्रुप्स हैविंग वन हाइड्रोजन लेस एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन. नाउ बच्चों, लेट्स से दिस इज अ प्रोपेन हियर, दिस इज प्राइमरी कार्बन, क्लियर, दिस इज सेकेंडरी कार्बन एंड दिस इज प्राइमरी कार्बन. सो बेटा प्राइमरी कार्बन के साथ जो ये हाइड्रोजन अटैच्ड है बेटा तीन, दे आर ऑल प्राइमरी हाइड्रोजन्स. और यहां भी क्या है बेटा, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं. तो टोटल इस मॉलिक्यूल में 6 प्राइमरी हाइड्रोजन्स होगी. और आपकी सेकेंडरी हाइड्रोजन कितनी है बेटा, 2 हैं, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन हियर. अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें, देन वी विल गेट योर दिस एल्काइल ग्रुप, दैट इज अ प्रोपाइल, rather normal propyl beta. This is also said to be a 1 propyl beta. This is 1 propyl here. अब बेटा नाउ अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें यहां, क्लियर, सो वी विल गेट हियर दिस CH3CH CH3. नाउ दिस इज सम alkyl group that is isopropyl. और 1-2 पोजीशन पे बेटा दोस्तों 2 propyl rather. नाउ बेटा let's say these are the different carbon atoms. प्राइमरी हैं, 3 प्राइमरी कार्बन एटम्स हैं और एक आपका टर्शी कार्बन एटम्स हैं. और इनके साथ जो भी हाइड्रोजन हैं, यहां प्राइमरी हाइड्रोजन कितनी है बेटा, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन आर देयर. और टर्शी कितनी है, ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज जो टर्शी हाइड्रोजन एटम. नाउ बेटा रिमूवल ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स जो हैं आपके, वो क्या देंगे आपको, दैट विल गिव यू दिस वन, बिकॉज वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम हियर बेटा, एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल. दिस कैन बी नंबर्ड फ्रॉम दिस पोजीशन बेटा 1 2 3. 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है तो इट्स 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल. नाउ रिमूवल ऑफ टर्शी हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को जब हम रिमूव करेंगे बेटा, देन विल गेट द एल्काइल ग्रुप एंड दैट इज योर 2 methyl 2 propyl. और दिस इज ऑल्सो सेट टू बी योर टर्शी ब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल बेटा. नाउ बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या रहते हैं बेटा, दिस में बी एल्केन्स और एल्काइंस. और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमेशा बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स रहते हैं. सो एल्किन्स में क्या होगा, आपका कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड रहेगा, और एल्काइंस के केस में आपका कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा बेटा. और बेटा ये जो आपके एल्किन्स हैं इनको हम ऑल्फिन्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑयल फॉर्मिंग. क्योंकि एल्किन्स के जो लोअर मेंबर्स हैं बेटा, ये क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म द ऑयली प्रोडक्ट्स. दिस वाई दे आर सेड टू बी ऑल्फिन्स. ना बेटा जो आपके एल्काइंस हैं, कॉमन सिस्टम में हम इनको एसिटाइलिन्स भी कहते हैं. और एल्किन्स को अगर हम देखें तो जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, CnH2n. सो मीन्स एल्किन्स में आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हैं एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन. और बेटा जो आपके एल्काइंस हैं, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2. सो मीन्स इसमें आपके कितने हाइड्रोजन एटम्स कम है बेटा फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, 4 हाइड्रोजन एटम्स कम है एल्काइंस में फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन. और इसकी जब हम नेमिंग करते हैं एल्किन्स की तो वी यूज द सुफिक्स इन, और एल्काइंस की जब हम नेमिंग करते हैं बेटा वी यूज द सुफिक्स YNE, दैट इज आइन. नाउ बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किन्स. बच्चों जनरल फॉर्मूला जो है आपका एल्किन्स का, दैट इज CnH2n. और एल्किन्स में आपका कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड रहेगा बेटा. और सुफिक्स जो हम यूज करेंगे दैट इज इन,
नाउ दिस इज फर्स्ट एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड है बेटा, वर्ड रूट फॉर दिस इज इथ प्लस सफिक्स है आपका इन, सो इट्स इथीन. नाउ दिस इज 1 2 3 prop plus ene propene. Now beta this is 1 2 3 4 but plus 2 ene. Now beta ये 2 क्यों? Because position of the double bond is at 2 beta. अब now here why it's 2 ene? Because the position of the double bond is at the carbon atom second beta. So this is 1 2 3 4. चाहे नंबरिंग हम इस साइड से करें बेटा या इस साइड से करें, फ्रॉम बोथ साइड्स वी आर गेटिंग द सेकंड पोजीशन ऑफ द दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो बेटा इट्स ब्यूट -2 बेटा. नाउ हियर दिस 1 2 3 4 5 है पेंट, और बेटा इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने लोएस्ट नंबर देना है. क्लियर? सो नंबरिंग इस साइड से करें 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे आ रहा है बेटा. इस साइड से करें तो इट्स 1 2. सो दिस numbering is preferred from right to left beta. Here this is pent to ene beta, so it's a pent to ene. और बेटा always remember जब हम अल्फाबेट को नंबर से सेपरेट करते हैं we use hyphen in between the number and alphabet. See here T और 2 के बीच में आपका बेटा hyphen is there, और 2 और E के बीच में भी आपका hyphen है. So this way you have to write the IUPAC name. नाउ बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ द एल्काइंस, जनरल फॉर्मूला आपको पता है बेटा, दैट इज CnH2n-2, और कार्बन कार्बन चेन में आपका क्या रहेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे हम दैट इज आइन, दैट इज YNE. नाउ दिस फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन बेटा दैट इज इथ प्लस आइन बेटा दैट इज इथाइन. नाउ उसी तरह बेटा दिस प्रॉप प्लस आइन प्रोपाइन. सो मेरे बेटा आपको क्या होना चाहिए पहले पता, वर्ड रूट्स आपको याद होनी चाहिए. सो इट्स 4 कार्बन एटम्स आर देयर, ब्यूट प्लस 2 आइन. क्लियर? सो दैट्स ब्यूट 2 आइन. सो हियर दिस इज 1 2 3 4 5 पेंट 2 आइन बेटा, पेंट 2 आइन, बिकॉज सेकेंड पोजिशन पे आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है बेटा. सो नाउ दिस पेंट 2 आइन. Now बच्चों halogen derivatives of alkanes, they are said to be haloalkanes. और जनरल फॉर्मूला जो है बेटा CnH2n+1x. Now this X that is a halogen that can be of fluorine, chlorine, bromine, iodine beta, that is going to replace one of the hydrogen atom of the alkane. Is that clear? And that's what they are said to be haloalkanes beta. And they are generally represented by your RX, because this is R beta जो अभी हमने किया था कि alkyl group क्या है, that is having one hydrogen atom less as compared to that of the corresponding alkane. So CnH2n+1 beta that is R, और इसके साथ क्या है X है. So alkane में से अगर हम कहें बेटा तो alkane से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इस X ने. Now बेटा फंक्शनल ग्रुप जो है that is X over here, that is halogen. ठीक है? सो इसको हम एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं बेटा, और सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज क्या करते हैं, हालो. क्लियर? सो हालो अल्केन्स, दे मे बी हालो अल्केन्स, दे मे बी डाई हालो अल्केन्स, और दे मे बी पॉली हालो अल्केन्स. मोनो हालो अल्केन्स में क्या रहता है बेटा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस करता है अल्केन्स का, कौन, हालोजन. और जनरल फॉर्मूला इनका क्या रहता है बेटा, CnH2n+1x, एंड X here may be your fluoride, chloride, bromide और iodide, या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडोमेटिन. देन डाइहैलोअल्केन्स बेटा. बच्चों डाइहैलोअल्केन्स क्या रहते हैं बेटा, दीज आर द डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द अल्केन्स, मींस 2 hydrogen atoms are replaced by your 2 halogens. And they are said to be dihaloalkanes बेटा. और पॉलीहैलोअल्केन्स क्या रहते हैं, जब 3 या 3 से ज्यादा हालोजन जो हैं दे आर गोइंग टू रिप्लेस द 3 और 4
हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स बेटा, तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्राई और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं एल्केन्स के, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड योर पॉली हैलो एल्केन्स। क्या कहते हैं इनको हम? पॉली हैलो एल्केन्स। ना बच्चों, मोनो हैलो एल्केन्स, और जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 X बेटा, सिर्फ एक ही X एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है एल्केन्स के बेटा। क्लियर? सो हियर CH3Cl, दिस इज अ मोनो हैलो एल्केन। क्लियर? और IUPAC नेम क्या रहेगा बेटा इसका? इसको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे हम, सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा, और एज अ हैलो दैट इज अ क्लोरीन है तो क्लोरो बेटा। क्लियर? दिस क्लोरो, देन इट्स अ मीथेन बेटा, क्लोरोमिथ प्लस एन, दैट इज अ क्लोरोमीथेन। नाउ बेटा कॉमन नेम इज मिथाइल क्लोराइड। बेटा इसको एज अ अल्काइल ग्रुप लिखेंगे और क्लोरीन से क्लोराइड हो जाएगा, सो इट्स अ मिथाइल क्लोराइड। नाउ बेटा हियर वी हैव द 2 कार्बन एटम, तो प्रीफिक्स क्या है यहां? प्रीफिक्स इज अ क्लोरो, वर्ड रूट है इथ, और प्राइमरी सफिक्स है एन बेटा, सो इट्स अ क्लोरोइथेन, सो दैट इज अ इथाइल क्लोराइड। उसी तरह बेटा दिस क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन बेटा। नाउ दिस प्रोपाइल क्लोराइड। सिमिलरली हियर बेटा 1 2 3 4 ब्यूट, तो इट्स अ क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर? दैट इज अ ब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ बेटा हियर वी हैव क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेन, सो दिस पेंटाइल क्लोराइड is the common name beta. So next is your dihaloalkanes। बच्चों जब अल्केन में से 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय योर 2 हैलोजन एटम्स, दे आर सेड टू बी योर dihaloalkanes। So general formula for this is CnH2n+X2। Now this is CH2Cl2 beta। Now here its IUPAC name is 1 पे है ये बेटा क्लोरीन, दूसरा भी 1 पे है, तो इससे 1 डाइक्लोरो मिथ प्लस एन मीथेन बेटा। अब बेटा एक से ज्यादा हैलोजन एटम जब आपके सेम कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, देन वी यूज द डाई फॉर 2 बेटा, ट्राई फॉर 3 और टेट्रा फॉर 4। सो दिस वे वी कैन नेम द IUPAC नेम ऑफ such dihaloalkanes बेटा। सो यहां क्या 2 हैं तो डाई वर्ड विल बी यूज्ड, सो इट्स 1 1 बेटा। यहां जो नंबर को नंबर से सेपरेट कर रहे हैं, कॉमा से कर रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर नंबर को नंबर से सेपरेट करेंगे हम कॉमा से, और नंबर को अल्फाबेट से सेपरेट करेंगे हम हाइफन से बेटा। सो इट्स रिटन लाइक दिस 1 डाइक्लोरोमीथेन। नाउ क्लोरो के आगे हमने क्या किया बेटा, डाई प्रीफिक्स लगा दिया जस्ट टू इंडिकेट 2 chlorine atoms. So this is 1 dichloromethane. Now common name is methylidene dichloride beta. Similarly here we have 1 position पे ही 2 bromine atoms हैं बेटा, तो this is 1 dibromo, word root क्या हो गया यहाँ 2 eth और ane, so it's 1 dibromo ethane बेटा। Clear? And its common name is ethylidene dibromide बेटा। इथाइलिडीन क्यों या मिथाइलिडीन क्यों? बिकॉज दीज 2 क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम बेटा, दैट्स व्हाई इट्स अ मिथाइलिडीन। क्लियर? और इट्स अ इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड बेटा। नाउ हियर अगर आप देखें बेटा, अभी तक हमने किए ऐसे कंपाउंड्स के नाम, ऐसे डाइहैलोअल्केन्स की नेमिंग हमने की जिनमें हालोजन जो था सेम कार्बन एटम्स के साथ अटैच था। नाउ हियर डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ आपका क्या है, हालोजन एटम जो है अटैच्ड है। सो हियर इसके लिए जो बेटा जो प्रीफिक्स लगेगा, 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है, सेकंड पोजीशन पे भी ब्रोमीन एटम है, तो इट्स 1 2 डाइब्रोमो। क्लियर? और वर्ड रूट क्या है एथ, और प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा बेटा एन, सो इट्स 1 2 डाइब्रोमो इथेन। और बेटा इसका जो कॉमन नेम रहेगा दैट इज इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अब बेटा यहां डिफरेंस देखें, जब सेम कार्बन एटम्स के साथ हैलोजेंस हैं देन इट्स अल्काइलिडीन,
और जब आपका एडजेसेंट कार्बन के साथ है बेटा देन इट्स एल्काइलिन। अब ये दो हैं इथाइलिन, अगर यहां भी क्या है, दो हैं बेटा, देन इट्स इथाइलिडीन। सो दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट these dihaloalkanes beta whether they are your attached to the same carbon atoms or for the or with the adjacent carbons। or now बच्चों next is chlorine atom is here with the one और second carbon के साथ attached है बेटा, clear। so it's so means जो chlorine atoms हैं यहां they are attached to the adjacent carbon atoms, clear। let's say this is 1 and this is 2, तो इट्स 1,2 डाइक्लोरो बेटा, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहां 1 2 3 4, वर्ड रूट आओ गया आपका ब्यूट और आपका सुफिक्स क्या लग गया बेटा एन, तो इट्स 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। नाउ बच्चों ये जो आपके क्लोरीन एटम्स हैं यहां दे आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन्स, सो कॉमन नेम क्या रहेगा, दैट विल बी ऑफ ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड। ना बच्चों एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स अभी हमने बात की थी, ये क्या हैं, ये ऐसे डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं बेटा अल्केन्स के जिनमें दो हैलोजन एटम जो हैं दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम्स, और इनको हम क्या कहते हैं बेटा एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स और सिंपली एल्काइलिडीन हैलाइड्स। और बच्चों जो पोजीशंस हैं इन हैलोजन्स की सेम कार्बन एटम्स पे दे आर आल्सो कॉल्ड जैमिनल डाइहैलाइड्स। क्या कहते हैं हम इनको, जैमिनल डाइहैलाइड्स और सिंपली जेम डाइहैलाइड्स। नाउ बेटा एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, ये भी मैंने अभी बात की थी बेटा, ये क्या है, ये ऐसे डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स हैं अल्केन्स के जिनमें दो हैलोजन एटम जो हैं दे आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम्स एंड दे आर कॉल्ड एल्काइलिन डाइहैलाइड्स और सिंपली एल्काइलिन हैलाइड्स बेटा। और इनकी पोजीशन जो है बेटा ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स दे आर आल्सो कॉल्ड बिसिनल डाइहैलाइड्स और सिंपली बिस डाइहैलाइड्स। ना बच्चों ट्राई एंड टेट्रा हैलो अल्केन्स, बच्चों इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय बेटा जनरल फॉर्मूला CnH2n-1x3 and then CnH2n-2x4। मीन्स बेटा ट्राई हैलो एल्केन्स के केस में एल्केन्स के 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे आपके हैलोजन एटम्स, और टेट्रा हैलो एल्केन्स के केस में 4 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे आपके 4 हैलो एटम्स बेटा। सो दे विल बी ऑफ टेट्रा हैलो एल्केन। ना बेटा IUPAC सिस्टम में बी नेम देम एज ट्राई हैलो एल्केन्स और टेट्रा हैलो एल्केन्स, बट देर इज no systematic common names, but there are no systematic common names for tri or tetra haloalkanes beta। but trihalo methane जो है बेटा they are best known by their trivial names and that is a haloform like chloroform is there, bromoform is there, your iodoform is there beta। अब now this is CCl4 here, clear, this is a carbon tetrachloride, this is a common name, क्लियर। सो बेटा लेकिन इस IUPAC नेम इज टेट्राक्लोरोमीथेन बेटा, टेट्राक्लोरोमीथेन। सो बेटा यहां स्पेस हो गया, इसको एक साथ लिखना है बेटा टेट्राक्लोरोमीथेन। नाउ दिस इज नाउ कॉमन नेम क्या रहेगा इसका, दिस इज एसिटाइलिन, 4 है बेटा टेट्रा ब्रोमाइड, एसिटाइलिन टेट्रा ब्रोमाइड। लेकिन IUPAC नेम क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट के साथ भी 2 ब्रोमीन एटम्स हैं, सेकंड के साथ भी 2 ब्रोमीन एटम्स हैं, देन इट्स 1,1,2,2 टेट्रा, 4 हो गए ना, टेट्रा ब्रोमो इथेन बेटा, इट्स 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। इज दैट क्लियर? सो कॉमा बेटा 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कॉमा, 2 के बीच में कॉमा, बिकॉज देज आर योर नंबर्स बेटा। सो नंबर्स एज आई हैव टोल्ड यू दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा और हाइफन सेपरेट करते हैं हम नंबर ऑफ अल्फाबेट को बेटा। सो इट्स 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। नाउ बेटा अल्कोहल्स कॉमनली दे आर सेड टू बी योर अल्केनोल्स बेटा, और
इन अल्कोहल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स एज देयर मॉलिक्यूल्स कंटेन 1, 2, 3 और मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बेटा। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से हुए? जिनमें सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेटा। डाइहाइड्रिक मीन्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर, ट्राइहाइड्रिक मीन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर और पॉलीहाइड्रिक मीन्स there are many hydroxyl groups. So बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जो जनरल फॉर्मूला है बेटा दैट इज CnH2n plus 1OH means one of the hydrogen of alkanes is replaced by your 1OH. That is a monohydric alcohol. Now beta general formula for this is of this ROH because this is alkyl group beta. Clear? So where N may be your 1, 2, 3, 4 and so on beta. Now this CnH2n plus 1 जो है that is R. Clear? That's why this is ROH beta. Now suffix used here for the alcohols is ol. और common name में हम क्या करते हैं बेटा? We add the word alcohol to the name of the alkyl group. Clear? Now beta alkyl plus alcohol that is alkyl alcohol. Now beta IUPAC नेम में क्या रहता है? दिस वर्ड रूट, देन बेटा प्राइमरी सफिक्स का जो ई है दैट इज ड्रॉप्ड हियर। और ये क्यों ड्रॉप करते हैं बेटा? क्योंकि 2 वावल इकट्ठे हो गए, A-E-I-O-U, these are the vowels. Clear? So one of the vowel will be dropped from here, this one, because next O is also your vowel. So this is a dropped then beta. This E is dropped from here. So now this is a alkanol. Now बच्चों let's practice the nomenclature of your alcohols. So बच्चों general formula is your CnH2n plus 1 OH. Suffix is ol. Now this is meth, word root is meth plus an plus ol beta. So meth plus an plus ol. So E will be dropped here. और तो बेटा यहां E को बेटा ड्रॉप कर देंगे हम बिकॉज दिस आर वावल्स, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा। तो दिस मेथेनोल, देन दिस इथ प्लस एन प्लस ओल इथेनोल, देन बेटा दिस prop plus an plus ol beta, drop this E, then this will be your propanol. Then beta this but plus an plus ol and that is a butanol. Hope students this is clear. Now this is a pent plus an plus ol beta, then it's so pentanol. Hope students this is clear. Now बच्चों, now अभी तक जो भी हमने नेमिंग की बेटा डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनमें क्या इन्वॉल्व रहे बेटा? प्रीफिक्सेस इन्वॉल्व रहे बेटा, वर्ड रूट इन्वॉल्व रही, प्राइमरी सफिक्स इन्वॉल्व रहा और आपका सेकेंडरी सफिक्स इन्वॉल्व रहा। तो मीन्स अगर हम कहें बेटा तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम नेमिंग करते हैं उनमें ये डिफरेंट टर्म्स जो आपकी इन्वॉल्व रहेंगी बेटा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल बेटा। अब बच्चों सपोज हमने इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है बेटा। नाउ वी हैव टू नेम दिस इन सच अ वे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन and we have to give the lowest number to the functional groups and the side substituents beta. So it's so numbering of this carbon chain will be done from this carbon beta 1 2 3 4. So beta second position पे ये मिथाइल ग्रुप है, then it's so 2 मिथाइल और आपका जो आपका पेरेंट चेन है उसमें का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने बेटा 4 है। तो वर्ड रूट इज ब्यूट फॉर दिस और कार्बन कार्बन के बीच में जो लिंकेज है तो प्राइमरी सुफिक्स जो है बेटा एन है और सेकेंडरी सुफिक्स जो है ओल है क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप आपका OH है। देन दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट प्लस एन प्लस ओल बेटा, सो इट्स 2 मिथाइल ब्यूटेनोल। ना बच्चों अगेन बेटा प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, ये बार बार मैं यूज कर रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। ना बेटा अगर इसकी नेमिंग करें आप तो अगेन 1 2 3 4 बेटा, क्लियर। सो 2 पोजीशन पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो इट्स वर्ड रूट इज ब्यूट फॉर दिस बिकॉज दे आर द 4 कार्बन एटम्स और इसमें जो प्राइमरी सुफिक्स है बेटा एन रहेगा क्योंकि आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज देयर
और सेकेंडरी सफिक्स जो रहेगा इसका ओल रहेगा क्योंकि OH इज देयर। क्लियर। नाउ जो प्रीफिक्स यूज होंगे यहां 1-2 पोजीशन पे आपके मिथाइल ग्रुप है बेटा, और ये 2 हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रीफिक्स रहेगा आपका। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड लाइक, सो इट इज नेम्ड एज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल बेटा। E will be removed here या E will be dropped here beta. So it's a 2,2 dimethyl butanol. Now बच्चों, when we have to name this compound here, we have to see the number of carbon atoms in the parent chain. That is a 1, 2, 3, 4. It's a but then. Clear? Then beta primary suffix is here ane, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहां सिंगल बॉन्ड है, और सेकेंडरी सफिक्स जो है दैट इज ओल, क्योंकि आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेटा, और वो कितना है सेकंड पोजीशन पे है, +2 ओल। और प्रीफिक्स जो रहेगा सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है बेटा, तो दिस 2 मिथाइल। सो बेटा E वी हैव टू ड्रॉप हियर। क्लियर। सो दिस 2 मिथाइल ब्यूटान 2 ओल। और नेमिंग कैसे बेटा, हाइफन कहां है ये आप क्लियर करें बेटा, -2 मिथाइल ब्यूटान -2 old beta. So beta, or only first letter is a capital and rest of them are small beta, and they are written in continuity. Now beta dihydric alcohols, अब ये क्या हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें आपका 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं बेटा, they are said to be dihydric alcohols, और जनरल फॉर्मूला CnH2n OH whole twice beta. Now this OH with this carbon and this carbon के साथ भी बेटा OH है, so 2 hydroxyl groups are attached to this carbon, these carbons बेटा, these carbon atoms. Now this ethylene glycol बेटा, और eth और कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 और 2 पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं बेटा, तो 1,2 डाइओल। डाई क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि 2 हैं। सो इट्स इथेन 1,2 डाइओल बेटा, इथेन 1,2 डाइओल। यहां बेटा E जो है दैट इज नॉट ड्रॉप्ड, क्योंकि नाउ D इज अ कॉन्सोनेंट। और बेटा बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड योर ग्लाइकॉल्स, दैट्स व्हाई दैट इज नेम्ड हियर इथिलीन ग्लाइकॉल, या सिंपली वी कैन समटाइम यूज द वर्ड ग्लाइकॉल ओनली। नाउ दिस इज अ OH, CH2, 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 OH बेटा, there are your 3 methylene groups, तो trimethylene glycol, so common name is trimethylene glycol here, और 1 और 3 पोजीशन पे आपका OH groups are there, so it's a prop plus ane। prop क्यों बेटा, 3 कार्बन एटम्स हैं, ane क्यों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और 1 और 3 पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो 1,3 डाइओल, सो इट्स अ प्रोपेन 1,3 डाइओल। नाउ बच्चों दिस इज 1 और 2 पोजीशन पे आपका क्या है, OH ग्रुप्स अटैच्ड हैं बेटा, सो ये क्या हो गया, दैट इज अ प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। क्लियर। और IUPAC नेम क्या रहेगा बेटा, इसको प्रॉप एन 1,2 डाइओल, सो इट्स अ प्रॉप एन 1,2 डाइओल। क्लियर। सो दिस इज अ propane 1,2 diol beta, E is retained over here because next is a consonant, that is a D. Now बच्चों trihydric alcohols, जनरल फॉर्मूला बेटा CnH2n-1 OH thrice बेटा। IUPAC नेम्स हम कैसे करेंगे बेटा, alkane plus triol, that is a alkane triol. Now here this is there, इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ भी आपका OH ग्रुप्स हैं बेटा, ठीक है। देन दिस प्रॉप, 3 कार्बन एटम्स हैं, प्रॉप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, तो इट्स 1, 2, 3 ट्राइओल बेटा, सो इट्स ट्राई वर्ड इज यूज्ड बिकॉज 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर देयर। क्लियर बेटा। सो दिस प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। सो विद दिस thank you, hope you have enjoyed today's session. So beta, I'm trying to simplify the nomenclature. You will not understand the organic chemistry until and unless you don't know the nomenclature of the compounds. So do it thoroughly beta. So in this beta, I'm helping you through these videos. I'm making these videos in much detail beta, so that it will be easy for you to understand the nomenclature beta. So keep practicing, keep studying beta. Thank you. Have a nice day.